Driver by Sinclair Lewis. Good morning students and most welcome in online class again. Okay, so today we'll have our chapter number 8 of Footprints Without Feet. The name of chapter is The Hack Driver by Sinclair Lewis. The Hack Driver, the meaning of hack driver is कोचवान, एक गाड़ीवान है, इसके पास घोड़ा गाड़ी है. The Hack Driver एक कोचवान है, गाड़ीवान है. Sinclair Lewis is the name of writer. So let's have the chapter. Okay, now The Hack Driver. This chapter, The Hack Driver, which is written by Sinclair Lewis, is about a man named Oliver Lutkins. The chapter The Hack Driver, which is written by Sinclair Lewis, is about a man named Oliver Lutkins. Oliver Lutkins एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी है whose name is Oliver Lutkins. He was a cunning man. He was a cunning man. He was a cunning man and was basically given a summon, a court's order to appear in courts, and he refused all the requests to appear in courts. He was a cunning man, so that's why he refused all the requests to appear. He refused all the requests of appearing in courts. It's about Oliver Lutkins, a hack driver, a cunning man. So let's have a story without wasting your time. The Hack Driver by Sinclair Lewis. Okay, The Hack Driver. The Hack Driver. A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. Quite difficult words यहाँ पे होंगे, थोड़ा focus रखना. Okay, The Hack Driver एक कोचवान यहाँ पे गाड़ीवान है. The Hack Driver. A young lawyer comes to a village. Young lawyer एक जवान आदमी जो है village में गांव में आता है. A young lawyer एक जवान आदमी जो है, एक जवान वकील जो है, comes to a village, गांव में आता है to serve summons on Oliver Lutkins. Oliver Lutkins को समन देने के लिए. और समन क्या होता है? बुलावा पत्र, कोर्ट का ऑर्डर होता है. I told you that he refused all the requests of appearing in courts. Before बताया था. A young lawyer comes to village to serve summons on Oliver Lutkins. एक young lawyer, एक जवान आदमी जो है गांव में आता है to serve summons on Oliver Lutkins. Oliver Lutkins को समन देने के लिए, Oliver Lutkins को बुलावा पत्र देने के लिए, कोर्ट का आदेश पत्र देने के लिए एक जवान लॉयर आता है गांव में. A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. A friendly hack driver और एक friendly hack driver, एक काफ़ी दोस्त जैसा, काफ़ी friend जैसा hack driver, एक कोचवान, एक गाड़ीवान, एक घोड़ा गाड़ी वाला, okay, take him round the village. उस lawyer को, उस young lawyer को पूरे गांव में घुमाता है, पूरे गांव में लेकर के जाता है friendly hack driver. Search of Lutkins, in search of Lutkins, Lutkins की तलाश में. जब वो गांव में आता है समन देने के लिए, कोर्ट का आदेश पत्र देने के लिए, कोर्ट का एक ऑर्डर देने के लिए ऑलिवर लुटकिंस को, तो वहाँ मिलता है उसे हैक ड्राइवर. कौन मिलता है? हैक ड्राइवर. और वो हैक ड्राइवर जो लॉयर को, यंग लॉयर को पूरे गांव में लेके जाता है ऑलिवर लुटकिंस की तलाश में. डज ही फाइंड हिम? क्या वो उसे खोज पाता है? वो इज लुटकिंस. लुटकिंस कौन है? Lutkins कौन है? I told you that this story is based or about Oliver Lutkins, who was a cunning man. And actually he was required to appear in court, but he refused all the requests of appearing in court. So let's have your chapter students is about Oliver Lutkins, okay, who was summoned basically by a young lawyer to the order of court. After graduating with honors, okay, डोंट फॉरगेट दैट यहाँ पे जो नरेटर होगा ना, नरेटर यहाँ पे जो होगा वो यंग लॉयर ही है. कौन है? यंग लॉयर है. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, ऑनर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद, ऑनर्स एक विशेष विषय होता है जो स्नातक में आप करते हैं, ग्रेजुएशन में करते हैं, कॉलेज में करते हैं. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, ऑनर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क. मैं एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया था इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म. एक मैग्निफिसेंट लॉ फर्म में, एक बहुत ही मैग्निफिसेंट, एक भव्य से कानूनी प्रतिष्ठान में, एक भव्य से लॉ फर्म में, कानूनी प्रतिष्ठान में मैं एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया था. आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ. मुझे भेजा गया था नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ, कानूनी सारांश तैयार करने के लिए नहीं. गांव में भेजा गया था ना, गांव में उसे सम्मन दे के भेजा था लुटकिंस को ढूंढने के लिए. आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ. मुझे भेजा गया था कानूनी सारांश तैयार करने के लिए नहीं, बट टू सर्व समन, बल्कि समन को सर्व करने के लिए. समन का मतलब कानूनी आदेश पत्र, बुलावा पत्र, बल्कि समन को देने के लिए मुझे भेजा गया था. कोई लीगल ब्रीफ, कोई कानूनी सारांश तैयार करने के लिए मुझे नहीं भेजा गया था.
बल्कि मुझे समन देने के लिए, मुझे कोर्ट का आदेश पत्र देने के लिए भेजा गया था। लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव, एक चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह। इसकी तरह एक चीफ, एक साधारण से प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह, प्राइवेट जासूस की तरह, निजी जासूस की तरह। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स। मुझे जाना पड़ा था कहाँ जाना पड़ा था? टू डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी। शहर के धूल भरे आई हैड टू गो टू, मुझे जाना पड़ता था टू डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। मेरे विक्टिम्स का मतलब मेरे उस व्यक्ति की तलाश करने के लिए जिसे मुझे बुलाना पड़ता था, जिससे मुझे मिलना पड़ता। विक्टिम का मतलब ऐसे पीड़ित होता है, यहाँ पर आदमी है, व्यक्ति है। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी। मुझे शहर के बहुत ही गंदे से और अंधेरे कोनों में जाना पड़ता था। तो सीक आउट माई विक्टिम, मेरे विक्टिम की तलाश करने के लिए, मेरे व्यक्ति की तलाश करने के लिए जिस व्यक्ति से मुझे मिलना होता था लीगली। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस, और कुछ लार्जर, कुछ बड़े लोग, कुछ आत्मविश्वासी लोग, वंस इवन बीट मी अप, मुझे पीट भी दिया करते थे। मतलब ऐसा मौका भी आता था कि मेरी अच्छी खासी धुलाई भी वो लोग कर दिया करते थे। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क, मुझे इस अनप्लीजेंट वर्क से नफरत थी, मुझे इस दुखद कार्य से बहुत नफरत थी, मुझे इस अनप्लीजेंट वर्क से नफरत थी। एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ, और शहर के जीवन से मुझे नफरत थी। इट रिवेल टू मी, यह मुझे नापसंद थी। इट्स रिवेल करती थी, मुझे नापसंद थी। आई इवन कंसिडर्ड फ्लेइंग टू माई होम टाउन, यहाँ तक कि मैंने सोचा था कि मैं अपने होम टाउन भाग जाऊँ, अपने गृह जिले में, अपने गांव भाग जाऊँ। वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर, जहाँ पर मैं रियल लॉयर बन सकूँ, जहाँ पर मैं वास्तविक वकील बन सकूँ। ऐसे मुझे कहीं भेजे थे, कभी किसी को बुलाने के लिए, मुझे क्लर्क बना दिया। एक्चुअली मैं लॉयर हूँ, मैं क्या हूँ? लॉयर हूँ। तो मैं कभी मैं सोचा करता था कि आई इवन कंसिडर, मैं यहाँ तक ये भी सोचता था, कंसिडर मीन्स विचार विमर्श करना, सोचना, फ्लेइंग टू माई होम टाउन, कि अपने होम टाउन भाग जाऊँ, अपने गृह जिले भाग जाऊँ। वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर, जहाँ पर मैं रियल लॉयर हो सकूँ, नॉट लायर इज लॉयर, जहाँ पर मैं रियल लॉयर हो सकूँ, मतलब एक सच्चा वकील बन सकूँ। राइट अवे, बिल्कुल, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड, इस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड को किए बिना, इस दुखद से प्रशिक्षण के काल को किए बिना, जो ट्रेनिंग मेरी यहाँ पर चल रही, यहाँ वहाँ मुझे भगा रहे, इसके बिना मैं वहाँ पर एक रियल लॉयर बन सकूँ, मैंने ऐसा सोचता था। ओके, सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंड मी आउट 40 माइल्स इन द कंट्री। सो आई रिजॉइस्ड वन डे, एक दिन मुझे बड़ा रिजॉइस और बड़ा आनंद हुआ, मुझे बड़ी खुशी मिली, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country। एक दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। When they मतलब जो मैग्निफिसेंट लॉ में जो अथॉरिटी, जो अधिकारी हैं, जब उन्होंने मुझे भेजा था out 40 miles in the country, ग्रामीण क्षेत्र में 40 मील दूर, ग्रामीण क्षेत्र में 40 मील दूर, माइल 40 miles in the country, कंट्री का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, to a town, एक ऐसे कस्बे में called न्यू मुलियन, जिस कस्बे का नाम था न्यू मुलियन। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि चलो शहर के जीवन से कुछ तो छुटकारा मिलेगा भाई, कहीं चलने का मौका मिलेगा हरी भरी वादियों में, गांव के नज़ारों में, गांव की खुशबू में, माटी खुशबू में कहीं जाने का मौका मिलेगा। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ मैं, ओके, कि मुझे मौका मिला एक ऐसे कस्बे में जाने का जिसका नाम था न्यू मुलियन। ओके, न्यू मुलियन, टू सर्व समन ऑन अ मैन कॉल्ड ऑलिवर लुटकिंस, एक ऐसे आदमी को समन देने के लिए, एक ऐसे आदमी को बुलावा पत्र देने के लिए, इसका नाम था ऑलिवर लुटकिंस। क्या नाम था उसका? ऑलिवर लुटकिंस। We needed this man as a witness in a law case. We needed this man as a witness in law case। हमें जो है उस आदमी की ज़रूरत थी एक लॉ केस में, विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में। और हमें जो है उस आदमी की ज़रूरत थी एक विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में, केस के अंदर उस आदमी की ज़रूरत थी। और जब कोई नहीं आता है ना गवाही देने के लिए, गवाह जब विटनेस अपना विटनेस देने के लिए नहीं आता है, जब विटनेस अपना विटनेस देने के लिए नहीं आता है, तो उसे समन मिलता है, उसे बुलावा पत्र मिलता है कोर्ट से। ओके, एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, और उसने उस ऑलिवर लुटकिंस ने हमारे सभी लेटर्स को इग्नोर किया था। उसने हमारे सभी लेटर्स को, सभी पत्रों को इग्नोर किया था, उसकी उपेक्षा की थी। बहुत से लेटर्स भेजे हमने उसे आने के लिए, आया ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं आया।
इग्नोर कर दिया। तो क्या भेजा इस बार उस हमने? समन भेजा। क्या भेजा? समन भेज दिया। When I got to New Mullion, जब मैं न्यू मुलियन पहुंचा, my eager expectation of a sweet and simple country village were sorely disappointed. When I got to New Mullion, जब मैं न्यू मुलियन पहुंचा, जब मैं न्यू मुलियन उस कस्बे में पहुंचा जहां पर जाने को लेकर के मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत प्रसन्नता मिली थी। When I got to New Mullion, जब मैं न्यू मुलियन पहुंचा, my eager expectations, जो मेरी eager expectations थी, जो मेरी उत्सुक महत्वाकांक्षाएं थी, मेरी expectations थी, मेरी उम्मीदें थी, ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज, एक बड़े मधुर से और साधारण से ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। और जब मैं न्यू मुलियन पहुंचा तो बड़े मधुर से और साधारण से ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जो मेरी ईगर एक्सपेक्टेशंस थी, जो मेरी उत्सुक महत्वाकांक्षाएं थी, वर सवरली डिसअपॉइंटेड, उन्हें बड़ा दुख लगा, उन्हें बड़ा झटका लगा। मेरी जो उत्सुक महत्वाकांक्षाएं थी, ग्रीनरी होगी, गाँव के लोग होंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, उन्हें डिसअपॉइंट का मतलब उन्हें सवरली डिसअपॉइंटेड, उन ईगर एक्सपेक्टेशंस को झटका लगा, उन्हें आघात पहुंचा। जब मैं वहाँ पहुंचा तो होना तो कुछ और चाहिए था, हुआ वहाँ पे कुछ और। न्यू मुलियन में मेरी ईगर एक्सपेक्टेशंस को क्या लगा? सवरली डिसअपॉइंटेड मीन्स आघात लगा, झटका लगा। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड्स, उसकी जो गलियाँ थी वो कीचड़ की नदियाँ थी, मड था चारों तरफ, कीचड़ था। its streets were rivers of mud, उसकी जो गलियां थी, न्यू मुलियन कस्बे की जो गलियां थी वो रिवर्स ऑफ मड थी, कीचड़ की गलियां थी। विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स, जिसमें कतारों में दुकानें थी, वुडन शॉप थी, लकड़ी की दुकानें थी। शटर वटर जो उसके साइड में दुकान बनाते हैं वो लकड़ी की दुकानें थी, जिसे हम लोग बोलते हैं किशॉक साइड शॉप। प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कहते हैं लोग किशॉक साइड शॉप, जो लोग थर्डी टाइप में बना लेते हैं। तो दुकानें वहाँ पे रोज में थी, कतारों में दुकानें थी, वुडन शॉप की लकड़ी की दुकानें थी। ईदर पेंटेड असोर ब्राउन, जिन पे या तो गहरा भूरा रंग का पेंट किया हुआ था। क्या किया हुआ था? असोर ब्राउन, गहरा भूरा रंग, ब्राउन कलर का पेंट किया हुआ था। और बेयर ईदर पेंटेड असोर ब्राउन और ईदर यूज यहाँ पे, ईदर पेंटेड असोर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट और, या तो उन पे सोर ब्राउन का पेंट किया हुआ था या फिर उन पे पेंट था ही नहीं, या फिर उन पे पेंट था ही नहीं। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस, उस स्थान के बारे में, उस न्यू मुलियन के बारे में जो एग्रीएबल चीज़ वहाँ पर थी, जिसको मैं एग्री कर सकता था, इस बात को लेके मैं सहमत हो सकता था, मतलब एक ऐसी चीज जो सहमत योग्य वहां पर थी, एक ऐसा दृश्य है जो सहमत योग्य वहां पर था, एक ऐसा दृश्य जो देख के बड़ा आनंद हुआ था। वो क्या थी वहां पे? was द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। वो दृश्य था स्टेशन पर, डिलीवरी मैन। उसको देख के थोड़ा अच्छा लगा, डिलीवरी मैन था। क्यों अच्छा लगा बताएंगे आपको, जस्ट वेट, ठीक है ना। ही वॉज अबाउट 40, वह 40 साल का था, लगभग 40 साल का था। रेड फेस, लाल चेहरा था उसका, चेयरफुल, बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था, बड़ा खुश था वो। एंड 30 एंड थिक अबाउट द मिडल, और थिक अबाउट द मिडल, थिक का मतलब होता है मोटा, मिडल का मतलब बीच में से मोटा था। क्या था? बीच में से मोटा था। एंड थिक अबाउट द मिडल, ही इज वर्किंग क्लोथ्स, नॉट क्लोथ, इज द प्रोनाउंसिएशन इज क्लोथ्स, ओके। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न, उसके जो वर्किंग क्लोथ्स थे वो डर्टी थे, गंदे थे। वेल वॉर्न का मतलब अच्छे खासे घिसे हुए नहीं थे, फटे हुए थे। कपड़े घिसे हुए नहीं होते, कपड़े फटे हुए होते हैं, ओके। इस वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी, से कपड़े जो है डर्टी थे, गंदे थे। एंड वेल वॉर्न, और वेल वॉर्न अच्छे खासे फटे हुए थे, ठीक है ना। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, उसका फ्रेंडली मैनर था, उसका बड़ा दोस्ताना व्यवहार था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, एक ही बार में आपको एहसास हो गया था कि वह लोगों को पसंद करता था, बड़ा ही फ्रेंडली, बड़ा एमिकेबल था। एमिकेबल का मतलब मित्र वही व्यवहार वाला आदमी था। सो हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न, उसकी वर्किंग क्लोथ्स काफ़ी डर्टी थे, काफ़ी वेल वॉर्न थे, फटे हुए थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, उसका फ्रेंडली मैनर था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, आपको एक ही बार में ऐसा महसूस होगा कि वह लोगों को पसंद करता था। I told him, मैंने उसे बताया, मैं चाहता हूँ to find a man named Oliver Lutkins, मतलब एक ऐसे आदमी को, to find a man named Oliver Lutkins, मैं एक ऐसे आदमी को खोजना चाहता हूँ जिसका नाम ऑलिवर लुटकिंस है। नाम क्या उसका? ऑलिवर। उसको वहाँ पे वो था ना कि नाम क्या था वो? डिलीवरी मैन। मैंने उससे कहा कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए, इसका नाम है ऑलिवर लुटकिंस।
मतलब मैं कैसे आदमी से मिलना चाहता हूँ, उसका नाम है ऑलिवर लुटकिंस। ओके, मुझे वो चाहिए। लुटकिंस, उसने क्या कहा? लुटकिंस क्वेश्चन मार्क यहाँ यूज़ किया। लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, मैंने उसे देखा था अभी यहाँ पे 1 घंटा पहले। आई सॉ हिम अराउंड हियर एन आवर अगो, मैंने उसे भी देखा था यहाँ पे 1 घंटा पहले। किसने कहा? उसने कहा था। किसने कहा था? वही जो डिलीवरी मैन था उसने कहा था। आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो, मैंने उसे देखा था यहाँ पर 1 घंटा पहले। हार्ड फेलो टू कैच द, हार्ड फेलो टू कैच द, हालांकि उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, वह हमेशा ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, वह हमेशा समथिंग कुछ, अदर किसी और, मतलब हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है, वह हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहता, उलझा रहता है। He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop. Poker game ताश पत्ती का खेल होता है। Okay? He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop, वह संभवतः Fritz shop, Fritz की दुकान के पीछे जो है poker game शुरू करने जा रहे हैं। मैं श्योर हूँ। उस डिलीवरी मैन ने कहा He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop, कि वह probably संभवतः Fritz shop के पीछे, Fritz के is a name of person, Fritz is a name of person, Fritz is a name of person, वह Fritz की दुकान के पीछे poker game संभवतः शुरू करने जा रहा है। मैं श्योर हूँ। I'll tell you boy, कि boy किसको बोल रहा है? वो उस लॉयर को बोल रहा है जो एक्चुअली जूनियर असिस्टेंट क्लर्क है, वहाँ पर समन देने के लिए आया ऑलिवर लुटकिंस को। कहाँ पर? न्यू मुलियन में, उस कस्बे में। I'll tell you boy, लड़के मैं तुम्हें बताऊंगा। Is there any hurt about locating Lutkins? Is there any hurt? Is there any hurt about locating Lutkins? क्या Lutkins को ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई आपत्ति है क्या? Yes, हाँ, I want to catch the afternoon train back to the city. हाँ, मुझे सिटी में वापस जाने के लिए, शहर वापस जाने के लिए दोपहर की ट्रेन पकड़नी है। मुझे सिटी में वापस जाने के लिए, मतलब I'll go back, मुझे वापस जाना है, दोपहर में मुझे वापस जाने के लिए सिटी में ट्रेन पकड़नी है, उससे पहले मुझे उसको पकड़ना है। ठीक है? यस, हाँ, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, हाँ मुझे ट्रेन पकड़नी आफ्टरनून की शहर में वापस जाने के लिए। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण था। किसी को समन देना होता है तो जगह जगह बताना नहीं पड़ता कि मुझे उस आदमी से मिलना है समन देने के लिए, मुझे इस आदमी से मिलना है समन देने के लिए। कभी ऐसा ना हो आपने उससे पूछ लिया जो उसके क्लोज फ्रेंड हो या क्लोज रिलेटिव हो, तो वो भाग जाएगा वहाँ से। तो मैं बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था उस समय। क्या था? आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण था। एंड सीक्रेट अबाउट इट, और मैं इस चीज़ के बारे में सीक्रेट था, मतलब मैं इस राज को राज ही रहने देना चाहता था कि समन देना है। मैंने उसे बताया नहीं था। किसको? डिलीवरी मैन को। I'll tell you what, I have got a hack, मैं बताऊंगा तुम्हें। I'll tell you what, मैं बताऊंगा तुम्हें। यहाँ पे कौन? डिलीवरी मैन कह रहा है I'll tell you what, I'll tell you what, मैं बताऊंगा तुम्हें। I have got a hack, मेरे पास हैक है। हैक का मतलब मेरे पास एक कोचवान है, मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है। I'll get it out and we can drive around together and find Lutkins. I'll get it out, मैं उसे बाहर ले आऊँगा। and we can drive around together, हम इसे एक साथ ड्राइव कर सकते हैं। and find Lutkins, और Lutkins को खो सकते हैं, और लुटकिंस को खो सकते हैं। I'll tell you what, मैं बताऊंगा तुम्हें। I have got a hack, मेरे पास एक हैक है। I'll get it out, मैं इसे लेकर आऊँगा बाहर। and we can drive around together, हम इसे साथ साथ चला सकते हैं। and find Lutkins, और लुटकिंस को ढूंढ सकते हैं। I know most of the places he hangs out, I know most of the places he hangs out, मुझे उन अधिकांश जगहों के बारे में पता है जहाँ पर वो यहाँ वहाँ हैंग्स आउट में जाता रहता है, भटकता रहता है। मुझे उन जगहों के बारे में मालूम है जहाँ पर वो यहाँ वहाँ जाता रहता है। गाड़ी चलाएंगे दोनों साथ साथ, ढूंढ लेंगे उसको। ओके? ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, बड़ा ही ओपन था। डिलीवरी मैन जो क्या था, बड़ा ही ओपन था, बड़ा ही खुले मिजाज का था। एंड फ्रेंडली, बड़ा दोस्ताना व्यवहार था उसका। दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, उसके अफेक्शन, उसके सौहार्द से, उसके प्रेम से मैं बड़ा ग्लो हो गया था, बड़ा चमक उठा था, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। आई न्यू ऑफ कोर्स, कि मुझे मालूम था सुनिश्चित रूप से, दैट ही वांटेड द बिजनेस, उसे काम चाहिए था। आई न्यू दैट ही वांटेड द बिजनेस, मुझे मालूम था उसे काम चाहिए था, तभी तो मेरे पीछे पीछे बात कर रहा था, मैं ढूंढने के गाड़ी लेके आता हूँ वगैरह वगैरह। मुझे मालूम था उसे काम चाहिए था। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस, बट हिज काइंडनेस वाज रियल, लेकिन उसकी दयालुता जो है बड़ी रियल थी, उसकी काइंडनेस बड़ी रियल थी, बड़ी वास्तविक, बड़ी सच्ची थी। I was glad the fair money would go to this good fellow. I was glad the fair money would go to this good fellow. मैं बड़ा glad था,
बड़ा प्रसन्न था कि जो फेयर मनी है, जो किराए का पैसा है, किराए का जो राशि है, जो पैसा है, जो मैं किराए के पैसे दूंगा इसको इस अच्छे साथी को जाएगा, किसी और को नहीं। मैं बड़ा इस बात को लेकर खुश था कि जो किराए की राशि, जो पैसा है इसको जाएगा, इसको मिलेगा। I managed to bargain down to $2 an hour. I managed to bargain down to $2 an hour. मैंने मैनेज कर लिया था, to bargain down to $2 an hour. 1 घंटे के $2 पर मैंने बार्गेन कर लिया था, बहसबाजी मतलब सौदेबाजी कर ली थी। मतलब 1 घंटे के $2 देने के, $2 देने के मैंने सौदेबाजी कर ली थी। And then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. And then he brought from his house, और उसके बाद वह अपने घर से लेकर आया nearby a sort of, जो नज़दीकी था, a sort of large black box on wheels, पहियों पर एक लार्ज सा बॉक्स लेकर आया, एक बक्सा लेकर आया। तो तांगा टाइप में होता है, घोड़ागाड़ी टाइप में होता है, उस पहियों के ऊपर उस तांगे पे बड़ा सा एक बक्सा था जिसमें आप बैठ सकते हैं, उसको लेकर आया, अपने नियर बाय घर से लेकर आया। He remarked, उसने कहा, well young man, here's the carriage, कि ये रहा कैरेज, ये रही घोड़ागाड़ी। And this wide smile made me into an old friend, और इस बड़ी सी मुस्कुराहट ने मुझे उसका पुराना मित्र बना दिया, और इस बड़ी सी मुस्कुराहट ने मुझे उसका पुराना मित्र बना दिया। These villagers are so ready to help a stranger, ये जो गांव वाले हैं ना, बड़े तैयार रहते हैं एक अजनबी की सहायता करने के लिए। ये जो गांव वाले हैं, these villagers are ready to help, are so ready to help a stranger, ये जो गांव वाले हैं स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए, अजनबी की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। He had already made its own task to find Oliver Lutkins for me. He had already made his own task. उसने पहले से इसको अपना काम बना लिया था, उसने पहले से इसको अपना किसको काम बना लिया था? To find Oliver Lutkins for me. लुटकिंस को ढूंढने वाला जो काम था, इस काम को उसने पहले से अपना काम बना लिया था मेरे लिए। Okay students, it's all about today. Thank you and have a nice day.